Hello everyone, good evening all. I hope you all are well, and I'm also hoping that as your prelims is approaching very soon, so you all are preparing very well for your exam. So to ease your prelims preparation, we are here with a specific prelims capsule course where we all are providing you some of the important topics which is very important for your this year's 2021 examination. So keeping in mind the trend of the examiner, whereas these days the trend is that the questions are, majority of the questions are coming from your environment and ecology section. So I'll be taking all the important topics. I'll be providing you the important topics from the current section which is related to your environment and ecology. Where we are discussing some of the organization, national and international organizations which are in news and which could be asked in your examination. We will discuss important geographical locations. We will also discuss some of the national parks, some of the species, some of the flora and fauna of the important places which are in news throughout the year. Then we'll also discuss some of the other sections of your environment and ecology, so that you cannot be left behind in this preparation. So starting with today's class, today we are discussing a very important topic, that is Climate Change Performance Index, that is your CCPI, which is abbreviated as CCPI. So the whole objective of our this lecture will be, first we'll understand what actually is the CCPI, who is the organization which is releasing this index or this data. Then we'll discuss about the aim of this organization or this index, what is the aim of releasing this index. Then we will discuss the top three nations or the top three countries, and from the topmost and from the lower end as well. Then we'll reach to the India's performance of this year's CCPI. Then we will discuss the various factors which are leading to the rise of this, or which are affecting this index, this particular CCPI. Then our next topic will be the hydrogen based energy, which is very much important for your prelims, as in 2019 also this topic was this in your prelims paper, the topic was asked directly, so we cannot ignore. And also this year in our budget session also specifically हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी को बार बार यूज़ किया है, बार बार जिक्र किया है, एंड इनफैक्ट थ्रू आउट द ईयर भी वो न्यूज़ में रही है. सो वी कैन नॉट इग्नोर दैट थिंग. हमारी इस पूरी सीरीज़ में हम ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डायरेक्टली टारगेट करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, विदाउट इधर उधर जाने के. हम डायरेक्टली बुल्स आई को हिट करने वाले हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, this climate change performance index is released by, which is the agency जो कि इस climate change performance index को release कर रही है. So it is a Germany based Germany based agency, that is German Watch plus New Climate Institute and the Climate Action Network, that is CAN. Together these three of them release this index. कौन सा index? Climate Change Performance Index. So it is an independent monitoring tool for tracking the climate protection performance of 57 countries and the European Union. The next question जो आपके prelims based बनता है वो बनता है कि इस ये जो भी इंडेक्स है या जो भी एजेंसी उसे रिलीज कर रही है, वो जो डेटा प्रिपेयर कर रही हैं वो कितनी कंट्रीज का या कितने नेशंस को या कितनी ऑर्गेनाइजेशन को मिला के कलेक्शन या कलेक्टिवली उस चीज़ को रिलीज किया जा रहा है.
सो जो सेकंड आपका आंसर, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है 57 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियंस को कंपेयर करके, इनके बीच में इस डेटा को कंपेयर करके रिलीज किया जाता है। कितने नेशंस का डेटा लिया जाता है? 57 प्लस EU, इनका डेटा कलेक्ट करके इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। सेकंड थिंग इज ये। फर्स्ट थिंग कौन रिलीज करता है, सेकंड कितने नेशंस का डेटा ये रिलीज करते हैं, थर्ड थिंग इनका एम क्या है, व्हाट इज द एम बिहाइंड रिलीजिंग दिस इंडेक्स। सो द एम इज to enhance transparency in international climate politics, and it enables comparison of climate protection efforts and progress made by the individual countries. 2 to 3 चीज़ें सब कंपोनेंट्स हैं इस पूरे एम में, वो आप लोगों को समझनी है। फर्स्ट थिंग इज, इस इंडेक्स को रिलीज करने का फर्स्ट जो एम है वो है ट्रांसपेरेंसी लाना। किस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी लाना? ट्रांसपेरेंसी लाना इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में, कि क्या जो सारे नेशंस हैं, जो सारी इंडिविजुअल कंट्रीज अपने अपने डेटा या अपने अपने क्लाइमेट एफर्ट्स जो लगा रही हैं, वो उस चीज़ में उस चीज़ को लेके क्लियर है या नहीं, क्या वो जो पॉलिसीज़ को रिलीज़ किया जा रहा है वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट की जा रही है या नहीं, क्या उनके बेस्ड जो डेटा या जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है वो एक्चुअल है या नहीं। इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली जब डिस्कस करते हैं, कलेक्टिवली देखते हैं कि हर इंडिविजुअल कंट्री, 57 कंट्रीज, हर इंडिविजुअल कंट्री कितने एफर्ट्स लगा रही है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एक्सरसाइजेस को के लिए, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, या जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके टारगेट को, उसके गोल्स को रिसीव करने के लिए, अचीव करने के लिए कौन कौन से नेशन कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। इन सारी चीज़ों का डेटा कलेक्ट करके तब जो जर्मनी बेस्ड ये इंस्टीट्यूट रिलीज़ करता है वो होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज, इट इज़ रिलीज्ड एनुअली। ये हर साल रिलीज़ की जाती है। इट इज़ रिलीज्ड एनुअली फ्रॉम 2005। कब से रिलीज़ की जा रही है? फ्रॉम 2005। 2005 से रेगुलर एनुअली हर साल ये रिलीज़ की जाती है। So basically this it is published annually since 2005, and this climate change performance index tracks the country's efforts to combat the climate change. As an independent monitoring tool, it aims to enhance transparency in international climate politics. I hope this is clear. Now moving forward, now we have understood that it assesses the performance of the various countries, but there are certain categories, there are certain parameters जिनके बेसिस पर ये परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन या जो आपका प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है हमेशा, कि किन पैरामीटर्स पर उस चीज़ को असेस किया जा रहा है। जहाँ पे कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट पैरामीटर्स देके या तो कोई एक पैरामीटर अलग से ऐड कर देते हैं टू एलिमिनेट वन, और पैरामीटर चारों दिए जाते हैं पर हो सकता है कि वहाँ पे एक गलत दे दिया जाए जिसके बेस पर आपका वो पूरा ऑप्शन जो है गलत हो, बट आपने बस एक ओवरव्यू देखा हो तो आप उस चीज़ को फिर रूल आउट नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी जब आप इंडेक्स पढ़ते हैं, नॉट ओनली दिस वन, कोई भी आप जब इंडेक्स पढ़ते हैं आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पहली ये, कौन रिलीज़ कर रहा है, कौन सी एजेंसी है जो उसे रिलीज़ कर रही है, देन कितने इंस्टीट्यूशंस का या कितने नेशंस का वो डेटा या कंपैरिजन ड्रॉ आउट कर रहे हैं, किन के बेस्ड वो है। थर्ड जो आपका होना चाहिए उसका स्पेसिफिकली एम क्या है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे जो एम है वो 3 सब कंपोनेंट से मिलकर बना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, प्लस एफर्ट्स की क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एक्सरसाइजेज में कितने एफर्ट्स हैं इंडिविजुअल लेवल पर हर कंट्री के, देन ही ये डेटा रिलीज़ किया जाता है। ये इनका बेसिक एम है।
देन जो फोर्थ क्वेश्चन हमेशा हमारा बनता है, वो क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनता है, किसी भी इंडेक्स को पढ़ने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो है वो कितने पैरामीटर्स के बेस पर उस डेटा को प्रिपेयर किया जा रहा है. सो this index is prepared on 4 parameters, which is first is greenhouse gas emissions. वो measure करते हैं कि it has constituted some of the percentage, some of the portions to 4 categories. First is for greenhouse emissions. वो measure करते हैं कि इस nation ने, इस country ने greenhouse gas emission को कम करने में कितने efforts लगाए हैं, उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज या कौन कौन सी एक्सरसाइजेज अपनी नेशन में, अपनी कंट्री के लेवल पे, नेशनल लेवल पर एक्सरसाइज किए गए हैं. नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी जिसका कंट्रीब्यूशन है 20% इस इंडेक्स में. रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एफर्ट्स कितने लगाए हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज चलाई हैं टू अचीव सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका यूज़ ज़्यादा बड़ा हो. बिकॉज वी नो जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, वो बहुत लिमिटेड है एंड उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाना, अगर वो ओवर एक्सप्लॉइट होती जा रही हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट होंगे. तो उस रिन्यूएबल तो उस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कितनी उस नेशन ने अचीव की, 20% उसका रोल होगा. Next है is energy use, that is 20%. So this data और this index measure कि कितना energy use हुआ है, कितना efficiently energy use किया गया है इस पूरे throughout the year. इस let's say अगर हम इंडिया के context में बात करें तो कितनी energy, कितनी wisely, कितनी effectively energy use की गई है, एनर्जी के कंटेक्स्ट में कौन कौन सी पॉलिसीज़ या कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट लेके आई है, वो इफ़ेक्टिवली क्या इम्प्लीमेंट हो पाए हैं या नहीं, उन सारी चीज़ों को भी असेस किया जाता है. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट पॉलिसी जिसका कंट्रीब्यूशन है 20% इस इंडेक्स में. देन मेज़र किया जाता है कि क्या जो ये कंट्री है, जो इन्होंने ये अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज़ बनाई है कॉम्बैट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, तो क्या वो पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं. बिकॉज वी ऑल नो हमारे कंट्री में, हमारे नेशन में पॉलिसीज़ बहुत सारी होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ निकल के आती हैं, बट द थिंग इज़ वो पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन जब तक किसी पॉलिसी का नहीं होगा तब तक इट इज़ ऑफ नो यूज़ कि हर दिन आप नई नई पॉलिसीज़ लेकर आएँ. इसीलिए फोर्थ जो फीचर है या जो फोर्थ पैरामीटर है इस इंडेक्स का वो है क्लाइमेट पॉलिसी, कि इस रिगार्ड में, क्लाइमेट पॉलिसी के रिगार्ड में कितने चेंजेस आपने किए हैं, कितना इफ़ेक्टिवली आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाए, एंड देन आप अपने रोल्स को, आप अपने सेट टारगेटेड गोल्स को कितने % अचीव कर पाए वो भी. तो ठीक है, आपने बड़ी बड़ी बातें कर ली, ये सारी चीज़ें तो ले आए, बट वेदर यू आर एबल टू अचीव दोज गोल्स और नॉट, जो भी आपके सेट गोल्स थे, जो भी आपके सेट टारगेट्स थे थ्रू आउट द ईयर के लिए, वो कितने आपने अचीव किए हैं, वो सारी चीज़ें इस इन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे इन 4 कैटेगरीज में इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है. नेक्स्ट इज, so the first 3 ranks of the overall ranking remained empty इस year जो 2021 में, जो कि 7 दिसंबर को ये डेटा रिलीज़ किया गया था, ये इंडेक्स. सो इस ईयर जो टॉप 3 पोजीशंस थी वो एम्प्टी रही, वो किसी को भी अलॉट नहीं की गई, बिकॉज जो सेट पैरामीटर्स थे उनके अकॉर्डिंग कोई भी नेशन उन 3 कैटेगरीज में, टॉप 3 कैटेगरीज में फिट नहीं था. दिस इज़ द रीज़न कि कोई भी दिस ईयर it remained empty. And Sweden is the country which performed well, जिसका कि 4th रैंक है. Sweden performed well, then UK performed 5th and Denmark was in 6th. So 4th position थी Sweden की, 5th थी UK की and 6th was of Denmark.
क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है जहाँ पे आपको एग्जामिनर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इनको रेफर करके क्वेश्चन में दे दें, बट यू शुड बी वेरी क्लियर, यू शुड बी वेरी मच क्लियर दैट जो फर्स्ट 3 रैंक्स थे इस साल वो एम्प्टी रहे, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। 4th, 5th एंड 6th से पोजीशंस जो हैं वो अलॉट की गई। नेक्स्ट इज फ्रॉम द G20 countries this year only the European Union as a whole along with UK and India they rank among high performance। इंडिया की परफॉर्मेंस ऑल्दो लास्ट ईयर से एक रैंक गिरा है, बट स्टिल टॉप 10 में इंडिया ने अपनी जगह बनाई है इस इंडेक्स में इस ईयर। एंड अगर कलेक्टिवली देखें जो टॉप 10 के नेशंस रहे वो यूरोपियन यूनियन प्लस यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया ने ये पोजीशन एक्वायर की टॉप 10 में। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस कि इंडिया ने किस सेक्टर में या किस, जैसे कि अभी हमने 4 सेक्टर्स देखे थे या 4 क्राइटेरियाज देखे थे, जिसमें से एक था ग्रीन हाउस गैस एमिशन, 1 वाज रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड वाज एनर्जी यूज एंड 4th वाज क्लाइमेट पॉलिसी। तो इसमें इंडिया ने हर इंडिविजुअल सेक्टर में कितना अचीव किया है, क्या रैंक रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, बिकॉज इंडिविजुअली भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यू शुड नो इंडिया का रैंक प्लस इंडिया का स्कोर। सो द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इज दैट इट रैंक्ड 10th, जो इंडिया की पोजीशन रही दैट वाज 10th पोजीशन एंड इट स्कोर्ड 63.98 points out of 100. So this is the most important takeaway of this whole thing. इंडिया का रैंक कितना था 10th एंड जो स्कोर रहा वो रहा 63.98 आउट ऑफ 100। नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट में इंडिया का परफॉर्मेंस। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया रैंक्ड 27th पोजीशन। हमें पता है देयर आर टोटल 57 नेशंस, तो 57 में से आउट ऑफ 57 कंट्री इंडिया रैंक 27th दिस टाइम, एंड लास्ट ईयर इंडिया वाज एट 26th। तो इस साल एक रैंक डिग्रेड हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में। So in September 2009 at the United Nations Climate Action Summit, India announced increasing the renewable energy target to 450 by 2030 from 175 gigawatts by 2022। ये बहुत important point है, please note it down। So जो इंडिया ने अनाउंस किया था एंड वी नो हमारा जो पेरिस क्लाइमेट समिट है उसमें भी जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, जो इंडिया के सेट टारगेटेड रोल्स हैं उनके बेसिस पर भी इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इन सितंबर 2019 at UNCA, that is United Nations Climate Action Summit, India has announced increasing the renewable energy target to 450 gigawatts by 2030 एंड अर्लियर इंडिया का सेट टारगेट गोल था वो था 175 गीगावाट्स 2022 तक, एंड जो 2030 तक है वो कितना है 450 गीगावाट्स। इस चीज़ को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। सो इन इट्स इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज INDC, India has pledged to increase the share of non-fossil fuels based electricity to 40% by 2030। इंडिया की जो ये कमिटमेंट रही है इनके बेसिस पर जो वर्क कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए, इसके ही बेसिस पर इंडिया को रैंक दिया गया है। एंड ये इंडिया की कुछ टारगेट्स रहे हैं जो इंडिया ने अनाउंस किए हैं to achieve the renewable energy. Next is emissions. So per capita emissions stayed at a comparatively low level. So emission wise इंडिया का जो रैंक रहा है वो रहा है 12। अगर हम देखें कि एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, सो वी ऑल नो, जो कि हॉट टॉपिक भी है आपके इन्वायरमेंट सेक्शन से, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द BS6 नॉर्म्स।
So India moved to BS6 norms, emissions norms to control the emissions from the automobiles. इंडिया ने 5th स्किप किया, डायरेक्टली 4th से 6th पर स्किप किया एंड रीच किया. क्यों? क्योंकि जो इंडिया का एमिशंस को कम करने का टारगेट है उसे अचीव कर पाए. दिस इज़ द रीज़न दैट जो ये भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स हैं वो इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर लिए हैं या इंडिया मूव ऑन कर चुका है BS6 के लिए. नाउ अब हम देखेंगे कि क्लाइमेट पॉलिसी इंडिया की कौन कौन सी रही है जिसके बेसिस पर इंडिया को जज किया गया है या इंडिया का इंडेक्स अनाउंस किया गया है. सो इंडियाज परफॉर्मेंस वाज रेटेड एज मीडियम, दैट इज 13th, ऑन ट्रैक टू अचीव एंड इवन एक्सीड द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स. सो इंडिया का जो अगर हम क्लाइमेट पॉलिसी वाइज जो इंडिया को रैंक दिया गया है दैट इज़ मीडियम रैंक दिया गया है विच इज़ 13th, एंड इंडिया इज़ ऑन द ट्रैक टू अचीव एंड इवन एक्सीड. कि इंडिया की कमिटमेंट थोड़ी ज़्यादा हैं बट इंडिया की जो कमिटमेंट है वाइज है बट थोड़े ज़्यादा हैं, दैट इज़ वो जो पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स हैं उनको भी ओवर एक्सीड करने के कमिटमेंट कर ली है. India is the only major economy in the world with 2-degree compatible climate targets and is set to overachieve it is by 2030 target by a wide margin. अब इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना. And for this, India has reduced its emission intensity by 21% in 2020 over 2005 level. Please note this data, it is very important. Now अगर हम एनर्जी यूज़ के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया वॉज रैंक्ड हाई. इंडिया का जो रैंक है वो हाई रहा है एंड जो रैंक रहा है दैट इज 10th की एनर्जी यूज में. नाउ इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, यही इंपॉर्टेंट टेकअवेज थे. कौन रिलीज़ करता है, क्या एम है, एम शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. नेक्स्ट इज़ कौन सा नेशन टॉप 3 में है, कौन से बॉटम 3 में है. नेक्स्ट इंडिया का रैंक एंड जो अनाउंस करने के क्राइटेरिया हैं वो क्या क्राइटेरिया हैं एंड इंडिया ने कितना अचीव किया है. कोई भी आप इंडेक्स जब भी रीड करते हैं इसी सेट ऑफ माइंड से, इसी सेट ऑफ कंटेंट से, ऑब्जेक्टिव से हमेशा रीड किया कीजिए. कोई भी आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रीलिम्स क्वेश्चन में, एग्जाम में. नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी. वी ऑल नो जो एनर्जी का टॉपिक है दीज डेज इज़ वेरी हॉट टॉपिक. कि हमारे जो एमिशंस हैं वो कम हो पाए, हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें एंड जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए हम ज़्यादा वर्क करें, जो कि अभी हमने पिछले टॉपिक में भी देखा. सो फॉर दैट ओनली जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी. अब वो हम देखेंगे दैट क्या है ये हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी एंड क्यों ये न्यूज़ में है, क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके इस ईयर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए भी. सो द यूनियन बजट of 2021 and 2022 has announced a national hydrogen energy mission, that is NHM, that will draw up a roadmap for using hydrogen as an energy source. अब जो बात है वो है कि हम हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे एनर्जी सोर्स के लिए. इसी के रिगार्डिंग एक रोड मैप प्रिपेयर किया गया है, जिस रोड मैप को प्रिपेयर करने के लिए हमारे इस ईयर के बजट में भी अनाउंसमेंट की गई है. नाउ बिकॉज वी नो दिस इनिशिएटिव हैज़ द पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रांसपोर्टेशन, because energy की requirement होती है. So we can see recently the finance minister in the union budget for 2020 and 2021 formally announced the national hydrogen energy mission, which aims for generation of hydrogen from green power resources. Next important thing is green power resources. ये आपको ध्यान रखना है. एग्जाम में हो सकता है यहाँ पे आपको एग्जामिनर रख दें ग्रीन की जगह ग्रे, ग्रीन की जगह ब्लैक.
तो जो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो ये एनर्जी डिराइव की जाती है हाइड्रोजन से, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन या डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसके बेसिस पर हमने यहाँ पे कहा ग्रीन पावर रिसोर्सेज। तो जो हमें ये एनर्जी यहाँ चाहिए वो एक्सट्रैक्ट होगी, वो होगी ग्रीन पावर रिसोर्सेज से। सो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज टू लिंक इंडियाज ग्रोइंग रिन्यूएबल कैपेसिटी विद द हाइड्रोजन इकोनॉमी। ये ऑब्जेक्टिव रहा इस एनर्जी को या इस मिशन को रिलीज करने का। As we all know that India's ambitious goal of 175 gigawatts by 2022 got an impetus in the 2021 and 2022 budget, which allocated 15,000 crore rupees for the renewable energy development and national hydrogen mission. Very important for your exam. So the usage of hydrogen will not only help India in achieving its emission goals under the Paris Agreement, but will also reduce import dependency on fossil fuels. So जो ये हाइड्रोजन मिशन को रिलीज करने का है, जो हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी है उसे अडॉप्ट करने का सिर्फ ये गोल नहीं है कि इन्वायरमेंट में जो रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो इल इफेक्ट्स हैं उन्हें कम किया जा सके, बल्कि जो हमारे सेट टारगेटेड गोल्स हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर, एंड जो अभी हमने देखा दैट 2022 तक 175 गीगावाट्स एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करनी है एंड 2030 तक 450 गीगावाट्स एनर्जी अचीव करनी है रिन्यूएबल एनर्जी। उन टारगेट्स को भी अचीव करने में हेल्प करेगा हमारा ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इज इट क्लियर? एंड एट द सेम टाइम जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पर वो भी मिनिमाइज हो पाएगी। हाइड्रोजन, अब हम देखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन बेस्ड ही हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ना कि किसी और एलिमेंट की। सो हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H2, इट इज़ एन अल्टरनेटिव फ्यूल दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डाइवर्स डोमेस्टिक रिसोर्सेज. It is abundant in our environment and it's stored in water. Hydrocarbons such as methane, that is CH4, and other organic matter. So जो हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी है, जो हाइड्रोजन है वो हमारे पूरे अर्थ पर बहुत ज़्यादा एबेंडेंटली मिलता है या एबेंडेंटली प्रेजेंट है। कहाँ से? जैसे कि वाटर में प्रेजेंट है, या जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, या हाइड्रोकार्बन्स हैं। हर किसी के अंदर हाइड्रोजन जो है वो बेसिक एलिमेंट होता ही होता है, वी ऑल नो। ये बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलरेडी प्रीलिम्स में, तो ये भी ध्यान रखना। हाइड्रोजन विद इट्स अबंडेंस, हाई एनर्जी डेंसिटी। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाइड्रोजन को ही एक्ट करने में हेल्प करती हैं? दैट इज इट्स हाई अवेलेबिलिटी और हाई अबंडेंस। नेक्स्ट इज इट्स हाई एनर्जी डेंसिटी, जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बेटर कंबशन कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन पॉल्यूटिंग नेचर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नॉन पॉल्यूटिंग, हैज़ वास्ट एडवांटेजेस ओवर द कन्वेंशनल फ्यूल्स। जो अभी तक हमारे कन्वेंशनल फ्यूल्स चलते आ रहे हैं उनके ऊपर अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है उसके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। कैसे कैसे? नॉन पॉल्यूटिंग है, इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट हाई एनर्जी डेंसिटी है। नेक्स्ट इज़ कि उसकी अवेलेबिलिटी है जो वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट है पूरे सरफेस पे, पूरे अर्थ पे। तो इसलिए हाइड्रोजन, and we all know hydrogen is the first and the lightest element on our periodic table, and since the weight of the hydrogen is less than the air, it rises in the atmosphere and is therefore rarely found in its pure hydrogen form, that is H2 form, because ये air से भी ज़्यादा lighter होता है। Is it clear? So hydrogen fuel is a zero emission fuel which is a zero emission fuel which is burned with oxygen. Is it clear? And it can be used in fuel, it can be used in a fuel cells or internal combustion engines.
दैट इज ऑफ स्पेस क्राफ्ट्स एंड ऑल। अब हम देखेंगे कि जो अभी हमने अपनी फर्स्ट लाइन पढ़ी थी जहाँ पे कि ग्रीन हाइड्रोजन का यूज हुआ था, उस ग्रीन हाइड्रोजन का क्या सिग्निफिकेंस है। सो टाइप्स ऑफ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि उसे किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है। फर्स्ट इज ग्रे हाइड्रोजन। सो ग्रे हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट इंडियाज बल्क प्रोडक्शन, जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है वो है ग्रे हाइड्रोजन। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फॉसिल फ्यूल से, नेचुरल गैसेस से। बट हम इसे अडेप्ट इसलिए नहीं करेंगे इन टू फॉर आर एनर्जी पर्पस, बिकॉज जो इसका बाई प्रोडक्ट है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होगा, हमारे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। सो इसीलिए दिस इज़ द रीज़न कि इतना ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस होता है, तब भी वी डज नॉट यूज़ इट फॉर आर एनर्जी अचीविंग और एनर्जी रिलेटेड। नेक्स्ट इज ब्लू हाइड्रोजन. It is also sourced from the fossil fuels. It is derived from natural gas through the process of steam methane. That is steam methane reforming, SMR. अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दैट हो सकता है कि जो ब्लू हाइड्रोजन है वहाँ पे दे दिया जाए इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्टीम मिथेन रीफॉर्मिंग. सो यू शुड बी वेरी क्लियर ये स्टीम मिथेन रीफॉर्मिंग है क्या. इस तरीके से अपने टॉपिक्स को लिंक करते चलिए. इसका भी बाई प्रोडक्ट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज़ द रीज़न कि इसको भी अडॉप्ट नहीं किया गया फॉर आर एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस. नेक्स्ट इज ग्रीन हाइड्रोजन जिससे कि हमारा जो ये एनर्जी है वो फॉर्म होती है. सो इट इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड. इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट्स इनटू वाटर, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है उससे ये प्रिपेयर की जाती है. किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से ही इसे हम अडॉप्ट करते हैं. एंड जो इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं दैट इज वाटर एंड वाटर वेपर. दिस इज द रीज़न कि हमने ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड या जो कि ग्रीन हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से जो हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, अचीव कर पा रहे हैं, उसे ही हम यूज़ में लेंगे अपनी एनर्जी फॉर्म करने के लिए. क्यों? फर्स्ट थिंग, उससे कोई भी जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, वो कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन में रोल नहीं है उनका. नेक्स्ट, जो कि उन्हें जनरेट जब हम करते हैं वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से ही करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम सन एंड विंड. नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे इस हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर्स में हो सकता है अगर इस चीज़ का रोड मैप प्रिपेयर किया जा रहा है एंड वर्क किया जा रहा है. तो फर्स्ट इज फ्यूल सेल्स. फ्यूल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बेस्ड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इससे. इन व्हीकुलर एप्लीकेशंस सच एज फ्यूल सेल यूज्ड इन कार्स, बसेस एक्सेट्रा, and in portable devices such as in laptops and mobile phones. Next is direct fuel in internal combustion engine vehicles. उसे as a fuel भी हम use कर सकते हैं because hydrogen is used as an energy carrier directly in our internal combustion engines and turbines in place of the fossil fuels or blended mixture with fossil fuels. Example, HCNG. So this is the hydrogen enriched compressed natural gas up to 30% with better power outputs which has 4% more fuel economy and 70% more reduction in carbon monoxide emissions than CNG. This is the reason that hydrogen based compressed natural gas में हम इस हाइड्रोजन को यूज़ कर पाएंगे जिसका कि कन्वेंशनल मेथड या कन्वेंशनल जो एनर्जी है उससे ज़्यादा एज हमें मिलेगा. हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द फर्टिलाइजर्स, केमिकल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज as it is a fundamental building block for the manufacture of ammonia.
सो इसे फर्टिलाइज़र एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में भी हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ इसके एडवांटेजेस, देन वील ऑल्सो सी कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं जिस वजह से अब तक हम अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं या इतना बजट बड़ा अमाउंट बजट में एलोकेट किया गया है स्पेसिफिकली इसके लिए। सो फर्स्ट इज इट विल रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स ऑन द फॉसिल्स। Hydrogen as an efficient fuel helps to reduce crude oil imports and its use as feedstock for ammonia production reduces India's fertilizer imports, जो अभी हमने देखा बिकॉज इसका फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ है क्योंकि ये एमोनिया बनाने में हेल्प करता है इसलिए। सो फर्स्ट थिंग होगा कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है वो कम हो पाएगी। नेक्स्ट, इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग एंड डीकार्बोनाइजिंग। द यूज ऑफ हाइड्रोजन कैन रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड एमिशंस significantly at a point of use, and if green hydrogen is used, then it has the capacity to decarbonize the entire value chain, enabling the reduced emission and climate change threat. इसके अंदर इतने ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो ऑलरेडी कार्बन एमिशंस हो चुका है या जो ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके इफ़ेक्ट को भी नलीफाई कर पाएगा अगर ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी हम लोग अडॉप्ट कर पाते हैं तो। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल लीव ओनली वाटर वेपर एंड हीट एज एमिशंस एंड रिलीजेस नो ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे बड़ा जो एज है वो यही है। क्यों? क्योंकि जैसे कि बाकी जो कार्बन के या हाइड्रोजन बेस्ड जो एनर्जी है, जैसे कि ग्रीन अगर हम ग्रे हाइड्रोजन या हम ब्लैक हाइड्रोजन देखते हैं, उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस को में ही कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस एमिशन को बढ़ाने में, इसलिए उन्हें हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। एंड जो सबसे बड़ा एज है इस ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी का वो है दैट इट रिलीजेस ओनली वाटर एंड वाटर वेपर एज अ बाई प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? नाउ अब क्या चैलेंजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या जो भी नेगेटिव ट्रेड्स या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिस वजह से हम अभी तक इस एनर्जी को अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं या डिफ़िकल्टी होगी इम्प्लीमेंट करने में अगर ये इसका रोड मैप प्रिपेयर होके आ जाता है तो। दैट इज़ फर्स्ट, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन। The technology which is used in production and use of hydrogen like carbon capture and storage, please note these things, ये जो टेक्नोलॉजी या ये जो मेथोडोलॉजी यूज़ की जा रही है कि जो हाइड्रोजन का जो नेसेंट स्टेज पर जब हाइड्रोजन होता है अपना, यानी कि जब अपने व्हाट वी कैन से जब वो मॉलिक्यूल या फिर जब वो एटॉमिक स्टेज पर होता है या बहुत इनिशियल स्टेज पर होता है, हम उसे तब अडॉप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस या जो टेक्निक जो मेथोडोलॉजी यूज़ होती है उसे एक्सट्रैक्ट करने में वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत इकोनॉमिक अगर हम देखें तो बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस उसके होते हैं। एंड कौन सी वो टेक्निक है? दैट इज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, दैट इज CCS, विच इन टर्न इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। बिकॉज ये जो प्रोसेस है या जो ये टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही कॉस्टली है, डिफ़िकल्ट है, कम्बसम है, नेसेंट स्टेज में हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर पाना या पकड़ पाना, इस वजह से जो ये पूरा प्रोसेस है या जो पूरा प्रोडक्शन है वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, हाई कॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है फ्यूल सेल्स में, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब हम फ्यूल सेल्स में इसे यूज़ करते हैं पोस्ट इट्स कंप्लीशन, तो जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिससे कि अगर हम आउटपुट देखें तो उतना नहीं होगा, जिसकी वजह से इसे अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज इट्स स्टोरेज, दैट इज हाइड्रोजन इज ऑल्सो हार्ड टू स्टोर and for storage it requires compression to 700 times atmospheric pressure refrigeration to -253 डिग्री सेल्सियस। तो जो हाइड्रोजन को स्टोर करने की प्रोसेस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि उसे जो स्टोर किया जाता है
वो -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाना एंड उन चीज़ों को फिर मेंटेन कर पाना एंड उस कॉस्ट को, जो कॉस्ट हुआ है, उसे इनकर कर पाना। सो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं या चैलेंजेस हैं हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी को अचीव करने में। बट जब जैसा कि ये पॉलिसी आ चुकी है, तो हो सकता है अब जब वर्क होगा तो आगे आगे हम चीज़ों को और सुनेंगे। बट फॉर नाउ अगर हम आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करी हैं, हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ नोट दीज थिंग्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर एग्ज़ाम. So that's all for today. Thank you very much. If there is any doubt or query related to any topic which we are discussing here, you can always ping in the comment section below. So thank you very much. Goodbye and take care. Good evening.